ओके, ठीक है वैष्णवी, आप शुरू कीजिए, प्लीज स्टार्ट। Yes, sir. Today's presentation is on Jack Ma success story. He is a Chinese billionaire. From an English teacher to the richest man in China. So today we will know about him, how he became the Chinese billionaire. So Jack Ma is one of the China's most influential business leaders and one of the 100 people who most affect our world, according to Time magazine. Biography. Name Jack Ma or Mayun. His real name is Mayun, and Jack Ma, he got his pet name from a tourist traveler, female tourist traveler. He was born on October 15, 1964 in China, and he is the founder of Alibaba Group. Net worth is $49 billion. Position executive chairman of Alibaba Group. Okay. Things you should know about Jack Ma. Do you know Jack Ma failed in primary school test 2 times, middle school test 2 times, and college entrance exam 2 times? Scored only one mark out of 120 in college entrance exam on maths topic. He was rejected by Harvard 10 times. He applied for 30 jobs after college and was rejected by all of them. He was the only person rejected by KFC out of 24% applied for a job. 23 were selected and he was the only person who was rejected in KFC. After starting Alibaba, they made zero revenue for first 3 years. But now Jack Ma's net worth is $39.1 billion. Moral is never give up. So next. Who is Jack Ma? Jack Ma is the founder of the e-commerce giant Alibaba and is a stakeholder at Alipay. I have written here Alipay, but it is Alipay by mistake.
his sister company, which is an e-payment portal. He is now officially the richest man in China. Alibaba is worth more than Facebook and processes goods more than eBay and Amazon combined. This might seem like the story of an arrogant and rich billionaire who hasn't seen the dark. But don't be mistaken, it's a true rags to riches story which will inspire you even in your darkest days. इसको एक्सप्लेन करो तो हिंदी में, पिछला So स्लाइड, Jack Ma, ये जो पिछला स्लाइड है ना, इसको हिंदी में भी yes sir. एक्सप्लेन करो। जैकमा अपने प्राइमरी स्कूल टेस्ट में 2 बार फेल हो चुका है, फिर मिडिल स्कूल टेस्ट में भी 2 बार और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में भी वो 2 बार फेल हो चुके हैं, मतलब क्लियर नहीं कर पाए हैं वो सब एग्जाम्स को। ठीक है। उसके बाद मतलब जब कॉलेज में उनको एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब वो अप्लाई किए थे और जब एग्जाम हुआ तो 120 मार्क्स का जो मैथ्स टॉपिक था उसमें से सिर्फ वो 1 मार्क्स ही मतलब लाए थे, जो कि मतलब सबके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम था। He was rejected by Harvard 10 times. Harvard में भी एक कंपनी है चाइना में, तो उसमें वो हार्वर्ड एमबीए यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। यस यस, हार्वर्ड इज अ यूनिवर्सिटी, वहां पे वो 10 टाइम्स रिजेक्ट हुए हैं। कहाँ है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? कहाँ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? कहाँ है? इंग्लैंड। इंग्लैंड सर। अच्छा, थैंक यू। He applied for 30 jobs after college and was rejected by all of them. 30 जॉब्स में भी वहां पे भी उनको रिजेक्शन मिला है। और फिर KFC में जब वो मतलब अप्लाई करने गए थे तो 24% वहां पे थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन उन्हें वही एक पर्सन थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था, बाकी 23 कैंडिडेट को वहां पे जॉब मिल गया था। आफ्टर स्टार्टिंग अलीबाबा दे मेड 0 रेवेन्यू फॉर फर्स्ट 3 years। पहले 3 साल में जब उनका वो अलीबाबा वाला जो ग्रुप शुरू हुआ उसमें फर्स्ट 3 years में उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। बट नाउ जैक मास नेटवर्थ इज $39.1 बिलियन, जो कि अब चाइना के रिचेस्ट मैन में आते हैं। ठीक, अब इसको बोलिए। Who is Jack Ma? Jack Ma is the founder of the e-commerce giant Alibaba। Alibaba ग्रुप के CEO, उनके अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर भी हैं जैक मा, और स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर अपने सिस्टर की कंपनी जो कि अली पे है, अली पे नहीं अली पे है, उनकी सिस्टर की कंपनी विच इज एन ई पेमेंट पोर्टल। अली पे कहाँ पे लिखा हुआ है? सर अली पेड हम लिख दिए गलती से सर, वहाँ तो मिस्टेक हो गया, अली पे है सर। ओके, अली पेड से यहाँ सेकंड लाइन में अली पे है सर वो। अच्छा, यस अली पे, yes sir. His sister company, which is an e-payment portal. He is now officially the richest man in China. Alibaba is worth more than Facebook and processes goods more than eBay and Amazon combined. Amazon और eBay से ज़्यादा अधिक इसका प्रॉफिट है अलीबाबा का। अगर हम इसके ग्राफ चार्ट में भी नेक्स्ट स्लाइड्स में है उसमें भी देखेंगे तो दिस माइट सीम लाइक द स्टोरी ऑफ एन एरोगेंट एंड रिच बिलियनियर। इनके स्टोरी मतलब इनका प्रेजेंट देखने से लगता है कि इनको पास्ट में लगता है पास्ट में कुछ इनको वैसा डार्कनेस नहीं देखना पड़ा है अपने लाइफ में, लेकिन हाँ ये बहुत समय में रिजेक्शन इनको मिला है और ये अपने मतलब अपने ही दम पे ये आगे बढ़े हैं। Rags to riches story which will inspire you even your darkest days. Now Jack Ma, the backstory. Mayun aka Jack Ma is one of those self-made billionaires with humble beginnings. तो अलीबाबा.com पहले शुरू हुआ था पेमेंट गेटवे, है ना? यस, सिर्फ पेमेंट करने की कंपनी, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, उसी तरह। यस सर। और यस सर नहीं तो कॉन्फिडेंटली बोलो, हमको कुछ नहीं पता भाई अलीबाबा के बारे में, हमको कुछ नहीं पता है, बस क्लास को भी नहीं पता ना। यू आर सपोज टू टेल अस इन सच अ वे दैट वी शुड नो अबाउट अलीबाबा एंड जैक मा एंड ऑल। क्लियर? तो ठीक, आगे बढ़िए। Jack Ma was born in Hangzhou, located in the southeastern part of China. He was born and raised along with an elder brother and a younger sister during the rise of communist China and its isolation from the western regions. His parents were traditional musicians, storytellers, and they didn't make enough to be even considered as middle class during those days.
मिडिल क्लास में भी उनको जगह नहीं है, पहले मतलब तो ये उससे भी बोलो लो ना, बैकग्राउंड से थे। पहले इसको एक्सप्लेन करो, राइज ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। कम्युनिस्ट तो व्हाट इज चाइना, दिस राइज ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, इसके बारे में कुछ पता है? किसी को कुछ पता है? कम्युनिस्ट यस सर, कम्युनिस्ट, रूल, चाइना में कम्युनिस्ट चाइना पार्टी में है, उसी पे कम्युनिस्ट रूल। अच्छा तो कम्युनिस्ट क्या हुआ साक्षी? पार्टी है सर, चाइना में पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे इंडिया में बीजेपी वगैरह वही सब। अच्छा जरा बोलिया कीजिएगा शी तो कैमरा जिनपिंग ऑन का करके पार्टी। बोला करो, जब बोला करो तो कैमरा ऑन करके बोला करो, ठीक है? तो सर ठीक है, आगे पढ़िए। Former US President Richard Nixon's visit to Hangzhou in 1972 improved the situation of tourism in his hometown, and Jack wanted to make the most of this opportunity. Jack always wanted to learn English as a kid, and he spent his early mornings riding on his bike to a nearby park, giving English tours to foreigners for free. It was then he met a foreign girl who gave him the nickname Jack, for his name was hard to spell for her. Jack, after graduating with a bachelor's degree in English, worked as an English teacher at Hangzhou Dianzi University with a pay of $12 a month. Now here comes the part where it gets more interesting, even before he has received that degree and became an English teacher. Jack Ma as an extremely Jack Ma as an extremely lucky bloke who just became a billionaire in a snap. But it is safe to know that rejections are synonymous with Jack Ma. You wouldn't believe the number of times this man has been rejected and failed. In his early childhood, Jack Ma failed in his primary school examinations not once but twice. He failed thrice during his middle school exams. When applying to universities after his high school, Jack failed the entrance exams thrice before finally joining Hangzhou Normal University. He even applied and wrote to Harvard University 10 times about being admitted and got rejected each time. This was only during his education. During and after his bachelor's degree, Jack tried and failed to get a job at a multitude of places. After spending 3 years to get into a university, Jack failed to land a job after applying to them 30 times. He recollects in his interview, when KFC came to China, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only guy who wasn't. He also one of the 5 applicants to a job in the police force and was the only one getting rejected after being told, "No, you are no good." Also, on his entrepreneurial undertakings, Jack Ma went on to fail on 2 of his initial ventures, but that didn't stop him in any way of dreaming bigger. ये इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए हिंदी में। Jack Ma was an extremely lucky bloke who just became a billionaire in a snap. रिजेक्शन उनको बहुत मिला, लेकिन फिर भी वो बिलियनियर बने हैं। अगर उनका अर्ली चाइल्डहुड में देखा जाए तो वो अपने जब स्कूल डेज था उनका, तो प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन में 2 बार वो फेल कर चुके हैं। मिडिल स्कूल एग्जाम्स में थ्राइस, मतलब 3 बार। व्हेन अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्जाम में वो बहुत बार फेल कर चुके हैं। रिजेक्शन उनको हर स्टेज पे उनको रिजेक्शन मिला है। Hangzhou Normal University में entrance exam में मिला है। He even applied and wrote to Harvard University 10 times about being 10 times rejection Harvard University में। और फिर during and after his bachelor's degree, Jack tried and failed to get a job at a multitude of places. जब वो अपना bachelor's degree complete कर लिए थे graduation, तो उन्होंने job के लिए जहाँ जहाँ अप्लाई किया, हर स्टेज पे उनको rejection मिला है। आप देख सकते हैं कि KFC जब इंटरव्यू के लिए चाइना में आए थे रिक्रूटमेंट के लिए, तो वहां पे 24 पीपल वेंट फॉर द जॉब। 24 पीपल वहां से जॉब के लिए गए थे, लेकिन 23 को वो जॉब में एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन जैकमा ही एक ऐसे अकेले थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था। जब पुलिस फोर्स की बात आई तो पुलिस फोर्स में भी उन्होंने अप्लाई किया, तो 5 एप्लीकेंट्स में से वही एक ऐसे एप्लीकेंट्स है जिनको वो जॉब नहीं मिला।
ये बोलकर कि नो यू आर नो गुड, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इसके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हो। और आगे भी हम लोग उनका ये लाइफ देखेंगे आगे का भी, तो उनको बहुत सारा रिजेक्शन मिला है आगे के जॉब्स में भी, पर वो गिव अप नहीं किए और आगे बढ़ते गए, और आज वो रिचेस्ट मैन है चाइना। जैकमा's 10 रूल्स। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलती से हमें कुछ सीखना चाहिए। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट साइज। बी द फर्स्ट। प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। रिस्पेक्ट योर कॉम्पिटिटर्स। सी challenges as opportunities. #believe. Surround yourself with greatness. Live healthy. Have fun. ये मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया, रूल समझाइए। Learn from the mistakes of others. दूसरों की गलती से हमें सीखना चाहिए। अपनी गलती, फोकस ऑन अपनी गलती अपनी अपनी गलती गलती को से नहीं। सुधारना चाहिए। यस सर, अपनी गलती को भी सुधारना चाहिए और देखना चाहिए कि मतलब जहां हम गलती कर रहे हैं उसमें सुधार लाना चाहिए। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट साइज, क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। बी द नहीं, इसको फर्स्ट। एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो वैष्णवी। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा काम 5 कीजिए, लेकिन अच्छा काम कीजिए, ना कि खराब काम जो है ना 500 कर दीजिए। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, बी द आगे। फर्स्ट, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बी द फर्स्ट, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसे एक्सेप्ट करके फर्स्ट अरे उसके फर्स्ट लिए प्रिपेयर पार्टिसिपेंट होना रहना, चाहिए। पार्टिसिपेंट्स होना बी द चाहिए। फर्स्ट मतलब आगे आगे बी बढ़ द फर्स्ट, करके आगे किसी बढ़ते। चैलेंज को आगे बढ़ करके एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हम करेंगे इसको, हम मतलब कोशिश तो करेंगे। कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, सतीश मेरी आवाज आ रही है तुमको? सतीश, सतीश। यस सर, यस सर। हाँ, जैसे अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे किसी चैलेंज को, तो मतलब चांसेस है कि तुम पास करो, फेल भी कर सकते हो, यस, लेकिन यस चांसेस सर। है कि पास भी करो, लेकिन चांसेस है कि फेल भी करोगे, दोनों बात होगी। लेकिन यस सर, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, भाग ही नहीं लोगे, तो एक चांस तब तो बनेगा। तब तो पास करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। तुम तो यस सर, दौड़ में हिस्सा ही नहीं लिए, तो ऐसा नहीं ना कि बगैर दौड़ में हिस्सा लिए तुम जीत जाओ। समझ रहे हो बात को? If you यस participate, सर, at least there are some chances of success. But you don't participate. If you don't participate, then you guarantee your failure. अब तो आप जीत ही नहीं सकते क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं किए। इसीलिए कम से कम पार्टिसिपेट कीजिए, शायद आप जीते। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट। सर जो हाँ दूसरे बोलो। का फोकस ऑन क्वालिटी है उस पर, मतलब हाँ, अपनी जो क्षमता है उस पर फोकस करना चाहिए, बट यहाँ नोट साइज लिखा हुआ है, इसका मतलब? नॉट साइज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए, नॉट छोटे साइज या है। बड़े नहीं मतलब बाबू, नहीं। क्या एग्जांपल दे तुम लोगों को? जैसे मान लीजिए कि ना आपको ये करना है, क्या कहते हैं उसको, टेबल बनाना है, टेबल, है ना? यस, आप 4 टेबल बनाइए या 5 टेबल बनाइए, ठीक है, लेकिन उसका क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। जब क्वालिटी बेहतर होगा तभी वो टेबल बिकेगा, है ना? अब मान लो कि तुम यस सर, 50 टेबल बना दिए, 100 टेबल बना दिए, और सारा डिफेक्टिव है, सारा डिफेक्टिव है, ये सब एक को उसके बिकेगा? क्वालिटी पर निर्भर होता है, उसके साइज और मतलब ज्यादा ही सब पर नहीं होता है। मतलब बहुत बड़ा बना दिए, सब कुछ कर दिए, क्वालिटी है ये नहीं, तो फिर क्वालिटी है उसका ही फायदा। नहीं। यस सर, क्वालिटी होना बहुत जरूरी। कम काम कीजिए लेकिन बढ़िया काम कीजिए, ठीक है, तो उससे फिर आपका नाम होगा। यस नहीं तो खाली साइज के चक्कर में काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है, सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। यही बात है। खैर, नेक्स्ट, 4 नंबर को एक्सप्लेन कीजिए। प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, हमें अपने प्रेजेंट को देखते हुए अपने फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। कैसे होगा? कैसे तो होगा? अगर फेलियर हम लोग को मिल रहा है तो हमें देखना फेलियर चाहिए नहीं कि हम होता है, फेलियर, फेलियर। हाँ, फेलियर हाँ, फेलियर अगर हमें मिल रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हमारा गलती कहाँ है और उसको सुधारते हुए हम अपने फ्यूचर
निधि, हेलो निधि, निधि, हाँ, यस सर। ये 4 नंबर कैसे होगा बाबू? 4 नंबर तैयारी कैसे होगी? राजू कुमार, राजू कुमार, ये हम Yes, sir. फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करें? फ्यूचर तो हमने देखा नहीं है। कल जो सब चीज हमने प्रेजेंट ही हैं? फ्यूचर है। प्रेजेंट को अच्छा कीजिए और फ्यूचर अच्छा हो जाए, होता ही रहेगा। नहीं, थोड़ा इससे आगे लेवल में बात कीजिए ना। सर हमें प्रेजेंट, प्लान ए के साथ साथ तो प्लान जो बी भी करके पास्ट रखना में जो चाहिए। सर अपने मिस्टेक से सीख के हमें फ्यूचर के लिए तैयारी करना जो चाहिए। पास्ट में बीत गया है उसको सर मतलब कि उस पर काम करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, उससे ही मेरा सर फ्यूचर कभी बनेगा। प्लान ए नहीं रखना चाहिए, प्लान बी भी साथ में रखना चाहिए। अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं किया तो आप प्लान बी पे वर्क कर सकते हो। सोचने का टाइम नहीं देना चाहिए बस। सही बात, सोचने का टाइम नहीं दे। गुड, वेरी गुड। सही है। फ्यूचर को, ठीक है, खैर इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। जितना भी जवाब मिला है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जितना भी जवाब मिला है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। खैर ठीक है, आगे बढ़िए आप। Respect your competitors. हम्म, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हिसाब से सर चलना चाहिए कि मतलब अगर बोलिए। कॉम्पिटिटर्स के लेवल जो भी देख आपका के अपोनेंट है ना बाबू, जो भी आपका अपोनेंट है, कॉम्पिटिटर है, उसका ना आप ही मत समझिए, उसको हल्के में नहीं लीजिए। कह रहे उसको तो हम उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं, उसका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि मेरा बहुत अच्छा उन्हीं से हम लोग को कॉम्पिटिटर है। सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है, तभी जाके आप सस्टेन कर पाइएगा। आप ये समझ रहे, कह रहे वो मेरा कॉम्पिटिटर है, उसको तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, उसमें होगा कुछ नहीं, आप ही उड़ जाइएगा। इसलिए कॉम्पिटिटर्स को, कंपटीशन को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर मेरा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, इसलिए स्ट्रांग है। अब हमको भी मेहनत करना है, उनसे ज्यादा मेहनत करेंगे तभी हम उनको हरा पाएंगे। बैठे बैठे नहीं हरा पाएंगे, ये पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना? ओके फाइन, नेक्स्ट। See challenges as opportunities. अगर कुछ चैलेंजेस आ रहा है तो वो हमें अपॉर्चुनिटी की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, मौका देखना चाहिए कि हम इसमें क्या अपना बेहतर कर सकते हैं। सही बात है, चैलेंजेस जो है वो अपॉर्चुनिटी होता है, उसी से करियर ग्राफ बढ़ता है, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट, बिलीव हम्म, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। एक बार फेलियर अगर मिल जाए तो हमें मतलब निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज लेना चाहिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद पे बिलीव होना चाहिए। नेक्स्ट। सराउंड योरसेल्फ विथ ग्रेट। बिलीव होना चाहिए कि मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, सिंपल। मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, और मेहनत अगर कामयाब नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरे मेहनत में कमी है, कुछ तो समीकरण में कमी है, तभी नहीं हो रहा। उसको फिर आप रिविजिट कीजिए, चिंतन कीजिए, लाइक दैट। खैर नेक्स्ट। सराउंड योरसेल्फ विथ ग्रेटनेस। हाँ, पॉजिटिव तरीके से हमें अपना सराउंडिंग जो है, अपना इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाना चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं लानी चाहिए दिमाग में, ताकि मतलब हम पॉजिटिव अगर थिंकिंग रखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में। ओके। लिव हेल्दी एंड हैव फन। लिव हेल्दी, अभी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है आज के डेट में, अभी जो टाइम चल रहा है। यस सर, हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी रहना चाहिए, हाँ, तभी हम लोग लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर अगर शरीर ही हेल्दी हमारा साथ रहेंगे, छोड़ दिया तो अगर हेल्दी रहेंगे हम, ठीक है, तो कोरोना असर नहीं करेगा बाबू। और यस हेल्दी सर। अगर नहीं है, अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला किए हुए हम पहले से, तो फिर बहुत बैडली कोरोना अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को पहले से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हेल्दी नहीं है वो। ठीक है, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग तो इम्यूनिटी जिनका कमजोर है उनको बहुत जल्दी कोरोना मतलब बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है, और जो हेल्दी है उनके लिए हल्का फुल्का बस है ना, बुखार आया, खांसी आया,
और खत्म हो गया, उनको उतना असर नहीं कर पाया। तो इफ वेल्थ इज गॉन, वेल्थ मतलब दौलत, एसेट जो भी है, सतीश, साक्षी, यस सर। रीमा, हाँ, इसको याद कर लीजिए आप लोग। इफ वेल्थ इज गॉन मतलब दौलत, इफ वेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ वेल्थ हेल्थ इज इज गॉन। गॉन एवरीथिंग इज गॉन। Everything. यस सर। ये बात याद रहे। चलिए अब इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये ग्राफ चार्ट है, Amazon, eBay और भी कुछ कंपनीज है, उसके कंपैरिजन में अलीबाबा का वॉट नेट ज्यादा है। हम्म, और अलीबाबा आपका जो इसका पर सेकंड वाई एक्सिस जो है 10,000 9,000 थी, क्या है, पॉइंट है, करोड़ है, क्या है ये, 1,000 2,000 3,000 4,000, डॉलर है, स्पेंडिंग पर सेकंड 10,000, डॉलर। अच्छा डॉलर, तो करोड़ डॉलर है, क्या है, $10,000 बस। और कुछ तो एक्सप्लेन करोगी ना, तुम तो पढ़ी हो, हैं? स्पेंडिंग पर सेकेंड डॉलर, स्पेंडिंग पर सेकेंड, पर सेकंड। ओ पर सेकेंड। सोर्स है इसका कंपनी एंड प्रेस रिपोर्ट्स, द इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट्स, टाइम फ्रेम 2013, अलीबाबा डेटा सितंबर, ये वो। ओके, तो इसमें ये ग्राफ है आपका स्पेंडिंग पर सेकेंड। अलीबाबा का जो स्पेंडिंग पर सेकेंड है, ठीक है ना, वो 10,000 मतलब अप्रोचिंग 10,000 है, 10,000 9,000 समथिंग, इतना स्पेंड करते हैं फाइन। उससे जस्ट हाफ है आपका 4,000 का Amazon. अमेजन का। मतलब ये कंपनी इतना खर्च करती है ना, स्पेंडिंग पर सेकंड मतलब खर्च करना। तो यस सर। खर्च करने का मतलब है कि बिजनेस बढ़ा रहा है, बिजनेस के लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ग्रेट, ओके। चलिए, प्रेजेंटेशन में कलेक्शन अच्छा है, लेकिन आपको वैष्णवी थोड़ा और प्रेजेंट कीजिए, मतलब और थोड़ा एक्सप्लेन अपने ठीक से नहीं किया, Explain. इस पे थोड़ा वर्कआउट करना होगा, सर ठीक तो हमको भी कर है? मेरा भी था आज। हाँ, यस सर। हम्म, ये किसका का नाम बताओ अपना? अपर्णा सर। अपर्णा, ठीक है। तुम्हारा किस चीज का था? नायिका। नायिका, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में करें हम लोग, यस सर। ओके फाइन। तो याद दिलाना, ठीक है ना, अपर्णा इन द नेक्स्ट क्लास, ओके सर। ओके फाइन। ओके, एक सेकंड बाबू। चलो दोस्तों, हमको अपना अटेंडेंस बना दो। ये BBM PPU 444, ठीक है। रोल नंबर बोलो जल्दी जल्दी, सर रोल नंबर 33 बताइए। 7 30, सर 48। एक एक करके बोलो ना बाबू। सर 7, 13 रुको बाबू, 7 13, Sir, 67 15. Sir, 15. एक आदमी सबका देख के बोलो ना। 15 एक आदमी कौन है? सौरभ, सौरभ, हाँ तुमको सर सबका रोल नंबर दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। हाँ, तो दिख रहा है तो एक आदमी देख के बोलो। 7 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद बोलो 58 58, ठीक है। 26 हैं 26 26, उसके बाद 11
11, 13, 13, 48, 48, 60, हैं 60. 60, Yes, sir. 29, आगे 29, 29, 30, 31, 31, 34, 34, 38, 38, 51, 51, 54, 54, 57, 57, 73, 73, 15, 15, 18, 18, 22, 22, 61, 61, 37, 77, 37, 37, 43, 37, 43, 63, 63, 67, 67, 79, 79, 80, 80, 53, 53, 39. 39, Answer. 23, 23, 44, रिपीट नहीं हो, ठीक है, 44, 33. 33, Okay, sir. सर मेरा छूट गया सर 59 सर। तो मेरा भी 59, छूट गया है 26। 26, 59, 26 हो चुका है सर। हाँ 26 हो चुका है। 80 सर। सर 13 2 बार है। 26 तो हो ही चुका है, क्या के लिए तो वो दिख नहीं रहा, इसीलिए उसकी शेयर कर रहे हैं। 80 अनीता मारे। यस सर। 80 भी हो गया सर। सर 80 हो गया है। 80 की 18, 80 सर 80 80 कहाँ पे लिखा, हाँ है तो, हो तो। चलिए ठीक है, सब हो गया ना, हाँ सर 13 2 बार है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्लास में ये प्रेजेंटेशन कौन देगा? अपर्णा, राइट? और लोग भी तैयारी कीजिए। सर हमको भी देना है सर। मेरा भी देना है सर। को भी देना है सर। ठीक है, प्रिपेयर रखिए, मेरा भी है सर। प्रिपेयर रखिए, नेक्स्ट क्लास में विल टॉक। ओके सर। ओके।